Just start the session. Yes. So the next thing what we are going to start, very interesting and a very important topic, asynchronous programming. So far, what we were doing was, something called as synchronous operation. Now let's first of all understand with this diagram what is the main difference between a synchronous and the asynchronous operations. Because we are going to start with the asynchronous programming. Let's first of all understand what exactly it means by the synchronous operation and how it is different from the asynchronous operation. Okay, see, synchronous operation first of all. You give, for example, you fired one of the query. Okay, you fired one of the query, or you give some of the commands. You give some DML statement like insert, update, whatever. In short, you requested something to the server. Now you know this. Whenever we fire a query, whenever we execute a DML statement, where it's all executed inside the Apex runtime engine. Who is executing that? Apex runtime engine. Apex compilers are compiling your Apex class, your codes and everything. And that Apex runtime engine, that compilers and everything, they are present onto the server. And we are making one request from our browser. That means you must have understood it. Like if I go to login and then our batch is 202. So whenever what I was trying to say is like, when you open this developer console, you create a class and then, you execute that class. You execute that class. So whenever you execute that class, this particular response goes where? That from your browser, because you are typing it from over here. This is one of the, online editor what we are getting with the developer console. But here, this is present onto my window, and this window is my browser. So when you are sending this request, that request is being generated from your browser. That browser is called as client, and that means your end from where you are accessing the Salesforce resources. That particular end is called as client. So, so that particular end, your browser is called as client. And whenever you are trying to execute a class, you're trying to execute a trigger, one SQL query, DML statement, whatever, that is something called as a request. That request is generated from the client end. This request is submitted to the server. This request is submitted to the server. Now, when server will take this request, it will perform the execution. It will first of all, transfer it to the compilers. Compiler will perform that whole kind of, it will try to find out that syntax or maybe syntactical mistake, whatever. So it will perform all pre-processing, and when the executable codes are ready, that is being given to the Apex runtime engine, and runtime engine will execute that. Now, once that compile code, once that executed, that particular response, that particular request has been compiled, a response has been generated, and that response what we get, whenever हम जब भी उसको देखते हैं developer console पे, the debug file what we receive, so it's in the form of HTML. That is a response that we receive. So for the request what you made, you generally receive one response from the server. This is the overall flow that we are actually observing these days. अभी तक जो हमने किया वो यही था. We submit one request, and that request has been given to the server. Server will compile that request, and based on that request is actually generate one response for you. That response is submitted back to the client, and onto your browser, onto your some of the window, you are going to see that response. This is something called as request and response architecture, client server architecture, request response mechanism and client server architecture. Now what really happens over here is like अब चलो अब मुद्दे की बात पे आता हूँ. मुद्दे की बात ये है कि when the client submitted one request, another request cannot be submitted till the time the response for the first previously submitted, the previously submitted request has been generated. So this is something called as one request at a time. One request at a time. Okay, when the request number one, for example, what I'm saying is like when the request number one is submitted, now I cannot submit request number two at that moment. Till the time I receive the response number one for this request. Now if I get the response for that previously submitted request, now here up I can submit that request number two as well. उसके बाद मैं request number two जो है submit करता हूँ.
and for example request number 2 will take some more time. Request number 2 को कुछ ज़्यादा समय लग गया. Oh, it was some complicated operation that it demands, it requires some complicated operation. तो रिक्वेस्ट नंबर 3 को वेट करना पड़ेगा टिल द टाइम रिक्वेस्ट नंबर 2 का रिस्पांस नंबर 2 जनरेट होकर वापस नहीं आता है. सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज सिंक्रोनस ऑपरेशन वेयर वन रिक्वेस्ट इज प्रोसेस एट वन टाइम. one request per one request per time. Only one request is going to be get compiled in a single moment of time. That is called as your synchronous operation. That is something called as synchronous operation. Now, for example, request number 2 का response वापस आ जाता है. अब request number 3 generate होती है and request number 3 को बहुत समय लेगा. तो till the time request number 3 का response generate नहीं होता है तब तक कोई भी नई request यहाँ से नहीं जा सकती. कोई भी नई request यहाँ से नहीं जा सकती. So that particular time, that much of the time, your client sit idles. क्यों? क्योंकि वो कोई भी request send नहीं कर सकता. Server is processing. Server is busy in processing some previously submitted request. So till the time you don't get the response for previously submitted, for the prior submitted request, so this client cannot submit. This client cannot push one more request at that particular moment of time. So this type of execution is called as synchronous. This type of execution is called as synchronous. So whatever you have learned so far, like you learned how to write down the Apex code, how to create the Apex classes and everything, your DMLs, your SOQLs, these all, everything, whatever. I mean, the class, what you have written inside the class, you have used DML and everything. Main important, the container was, your class is a container. The class was asynchronous operation. Now let's understand there's one more thing called as synchronous operations, asynchronous operations. Everything what you executed so far was synchronous. One request, one response. Till the time one request has been given, no other request. That is what's asynchronous. That is what synchronous operation. Let's now understand what does it means by the asynchronous operation. Okay. So asynchronous operation, let me repeat the same example. Request 1 is submitted. Request 1 submit ki gayi from the client. Now server requires 2 seconds to process this. Okay. After 2 seconds, response has been generated. So response was submitted back to the client. Response aa gaya. When the response was submitted, request number 2 generate. Request number 2 submit कर दिया गया. अब जब रिक्वेस्ट नंबर 2 को ये प्रोसेस कर रहा है, मतलब सर्वर इज नाउ एक्चुअली प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट नंबर 2 R2. ठीक है. द क्लाइंट डज नॉट सिटिंग आइडल. क्लाइंट ने उसी वक्त रिक्वेस्ट नंबर 3 रिक्वेस्ट नंबर 4 को भी पुश कर दिया. सर्वर इज एक्चुअली बिजी इन कंपाइलिंग R2 रिक्वेस्ट नंबर 2, बट क्लाइंट इज नॉट सिटिंग आइडल. Client is not sitting idle. In the meantime, client has pushed request number 3 and request number 4 as well. So there are two requests, request number 3 and request number 4, that are in pending state. And presently server is executing R2. Now after some amount of time in the response of R2 was generated. So now server becomes free. As soon as server becomes free, it has two requests that are in pending. So it will start the execution of R3. Now he is executing R3. At that time R4 is pending. After R3 का response generate हो जाएगा, RES3 response number. Then it will take R4. Then it will take R4. Now it will take R4 for the execution. Now there is no more request that are pending. उसके बाद में जितना भी समय लगा R4 जो है, R4 का response जो है वो generate हो जाएगा. हाँ, meanwhile it could take some more request. कि R4 का execution चालू है, R5 आ जाता है. तो R5 will be in the pending state. After execution of R4, R5 will going to be get executed. After that, R5 will going to be get executed. So this is what asynchronous operation. When there is a capability that if server is executing one request R2, we can even give some more request to that. But हाँ, यहाँ पर एक चीज और याद रखो कि ये multi processing नहीं है. It's not like multiple requests are executing. No, it's not like there is a capacity to store some request. How? अब चलो मुद्दे की बात पर आते हैं. Asynchronous operation is only possible because there is an internal memory with the server. Apex runtime engine, that server Apex runtime engine, for example, here is AP27 server है आपका. That AP27 server, the Apex runtime engine that is present onto this, that have one of the memory called as Apex queue. There is an internal memory with this server. ये आपको accessible नहीं है directly. आपको directly accessible नहीं है, indirectly accessible है. That is how we are. अभी asynchronous programming हम पढ़ रहे हैं. With the asynchronous programming, what we are learning right now is that concept. So asynchronous programming जो है, asynchronous operation इसीलिए possible है because the Apex runtime engine have its own memory, something called as Apex queue.
जैसे वर्कफ्लो क्यू याद होगा तो मैंने कहा था कि ऑल द टाइम डिपेंडेंट एक्शन दे आर स्टोर्ड इनसाइड दैट पर्टिकुलर क्यू, वर्कफ्लो क्यू याद आ रहा है। तो ऑल द टाइम डिपेंडेंट एक्शन दैट आर एक्चुअली प्रेजेंट इनसाइड दैट क्यू इन द सेम वे, क्यू मतलब मेमोरी होता है। तो सर्वर के पास में अपना एक खुद का मेमोरी होता है जिसको हम बोलते हैं अपेक्स क्यू। सर्वर के पास में अपना खुद का एक मेमोरी होता है जिसको हम बोलते हैं अपेक्स क्यू। और अपेक्स क्यू की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 5 जॉब्स, 5 जॉब स्टोर कर सकता है, 5 रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर सर्वर R2 एग्जीक्यूट कर रहा है तो अगर मीन वाइल R3 आ जाता है वो अपेक्स क्यू में चला जाएगा, R4 आएगा वो भी अपेक्स क्यू, R5 आएगा, R6 आएगा एंड R2 R7, बस। उसके बाद R8 आएगा तो नहीं आ सकता, R8 को रुकना पड़ेगा तब तक जब तक यहाँ पे क्यू खाली नहीं होता, एक एक तो भी जॉब खाली नहीं होता ऐसे। तो अपेक्स क्यू की जो कैपेसिटी होती है ना वो होती है 5 जॉब। जॉब मतलब यही आपके रिस्पॉन्सेज, रिक्वेस्ट जो आती है सर क्लाइंट से जो आता है रिक्वेस्ट उसी को जॉब बोलते हैं। तो अपेक्स क्यू नाम का एक मेमोरी होता है अपेक्स रन टाइम इंजन पे। और ये सारे जो अनप्रोसेस्ड अनएग्जीक्यूटेड रिक्वेस्ट जो होती हैं दैट आर स्टोर्ड इनसाइड वन ऑफ द मेमोरी कॉल्ड एज अपेक्स क्यू। तो अपेक्स क्यू की कैपेसिटी कितनी होती है? 5 जॉब्स, 5 रिक्वेस्ट इट कुड स्टोर। उससे ज्यादा होती है तो क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको। देयर इज अ स्मॉल कंसेप्ट आफ्टर दिस, फ्लेक्स क्यू नाम का एक कंसेप्ट है जो इसी टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ। कि अगर 7 के बाद में 8 9 10 आ गई तो वो कहाँ जाएंगे, 11 12 13 आ गया तो वो कहाँ जाएगा, क्या उसको वापस आएगा? नहीं। विंटर स्प्रिंग 2017 के पहले ये कंसेप्ट नहीं था। स्प्रिंग 2017 के बाद में देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज फ्लेक्स क्यू। वो क्या है मैं उस पर टॉपिक पे आता बाद में आऊंगा, अभी समय नहीं है उसका। बट asynchronous ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि when server is processing one request at that moment of the time you are the client is even capable to push some more request, लेकिन वो अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सर्वर विल एग्जीक्यूट वन रिक्वेस्ट एट अ टाइम, हाँ, लेकिन देयर इज अ चांसेस दैट यू कुड at least push some more requests because all of that unprocessed requests are going to get stored inside a memory called as apex queue. Apex queue, and the capacity of apex queue is to store the 5 jobs, 5 response, 5 requests. It is capable to store that much of the jobs inside that. So this is something called as asynchronous operation. This is something called as the asynchronous operations. And mostly the asynchronous operations are used in 2 to 3 different places real time पे। एक तो लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस, जैसे कि आपका इंटीग्रेशन जहां पर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से कुछ तो भी डेटा फेच करते हैं। Let me give you that example. अभी मान के चलो कि वी हैव वन ऑफ द सिस्टम कॉल्ड एज जैसे वेदर मैप। There's a website called as weather map, ठीक है। Now you are passing some parameter to this website. Example, you are just entering like just entering the city value or something like that. And in response to this parameter, what you have supplied to this, it's actually giving you some weather conditions. But ideally, Abhi, what we are expecting कि within 30 milliseconds, within 30 seconds, this is the website, this particular web services, this particular application is expected to give the response. But due to some reasons, इसका server down है। You from your side, you were very prompt। Salesforce की तरफ से हमने जो है, Salesforce की साइड से हमने सारे पैरामीटर्स ट्रांसफर कर दिए, सिटी नेम, पिन कोड वगैरह वगैरह सब। Salesforce की तरफ से वी हैव ट्रांसफर दैट पैरामीटर। और ये जो एक्यूरेट वेदर जो मैप है, वेदर मैप जो भी ये वेबसाइट है, बट इट टेक्स सम मोर टाइम, इट टेक्स सम मोर टाइम टू गिव यू द रिस्पॉन्स बैक। दैट टाइम आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग में जा रही है। तो इस तरह से जो लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस होते हैं, स्पेशली विद द इंटीग्रेशंस में ये इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। इंटीग्रेशन में इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन। तो ये सारी चीजें, ऑल दैट लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन वी जनरली डू नॉट कोड इट सिंक्रोनसली। सिंक्रोनस कोड नहीं करते हम लोग, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है ना कि बाकी सारी रिक्वेस्ट पेंडिंग में चली जाती है। अगर मान के चलो कि एक रिक्वेस्ट को 10 मिनट लग गए, तो 10 मिनट तक फिर आप दूसरी कोई रिक्वेस्ट यहाँ क्लाइंट से प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी पूरी खत्म हो जाएगी। दिस बिकम्स अ वेरी अनएफिशिएंट सिस्टम। तो ऐसे जितने भी लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस होते हैं, ऐसे जितने भी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस होते हैं विच रिक्वायर सम मोर अमाउंट ऑफ टाइम, तो वी एक्चुअली कोड असिंक्रोनस फॉर दैट। तो असिंक्रोनस का सिलेक्शन अपना कहाँ होता है, सबसे पहले वो समझो आप। टेक्निकली तो आप ये समझ गए कि अच्छा एक रिक्वेस्ट आई है तो अपन चाहे तो क्लाइंट दूसरा रिक्वेस्ट भेज सकता है, भले ही वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो जाके एक मेमोरी में चला जाएगा, अपेक्स क्यू में चला जाएगा, थोड़ी देर के लिए वहां पे जाके आराम करेगा। इट्स जस्ट लाइक अ वेटिंग रूम। आपकी ट्रेन आने की है तो आप जाओ वेटिंग रूम में बैठ जाओ, एसी ऑन करो और बैठ जाओ। तो इट्स समथिंग लाइक दैट स्मॉल। ये तो टेक्निकल हो गया, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछो कि यार इसका यूज क्या है, रियल टाइम पे तुम कहाँ यूज करोगे, तो तुमको पता होना चाहिए। थ्योरी में लिखा है मैंने, थ्योरी पे लिखा है मैंने, सर्वर इज बिजी नॉट अवेलेबल, तो उस टाइम पे सारी ये चीजें होती है। हाँ,
बाय यूजिंग asynchronous ऑपरेशन व्हाट वी कैन डू इज लाइक हम लोग लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन जितने भी होते हैं, स्पेशली इंटीग्रेशन पे लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन होता है, बिकॉज वी नेवर नो कि थर्ड पार्टी, जैसे आपका पेमेंट गेटवे कोई ले लो आप, या फिर आईआरसीटीसी का वेबसाइट तत्काल का टाइम, उस टाइम पे क्या होता है कि व्हेन यू आप तत्काल के टाइम में भी देखो आईआरसीटीसी के सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड आ जाता है एकदम से, और उस समय इफ यू आर ट्राइंग टू बुक द टिकट, तो आपका टिकट या फिर आपका ट्रांजेक्शन जो है, तो वो दैट टाइम जब तक वो थोड़ा सा लॉन्ग रनिंग हो जाता है ना, तो सम टाइम यू माइट हैव ऑब्जर्व दिस। तो ऐसे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं जो जिसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है, दैट टाइम व्हाट वी प्रेफर इंस्टेड ऑफ सिंक्रोनस व्हाट वी प्रेफर इज असिंक्रोनस, ताकि हमारा क्लाइंट आइडल नहीं होना चाहिए, क्लाइंट हैंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली, दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन की असिंक्रोनस क्या होता है, असिंक्रोनस का टेक्निकल आई मीन कैसे एग्जीक्यूशन होता है उसका, दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड। ठीक है, अब इसके रिलेटेड जो थोड़ी बहुत क्वेरी है वो थोड़ा सा आप देखो, इसके बारे में पढ़ो, यहाँ से सभी लोग पढ़ो कि असिंक्रोनस क्या है, असिंक्रोनस की क्वेरी क्या है। हाँ, असिंक्रोनस में एक चीज और चीज है, ये अच्छा हुआ दिख गया, गवर्नर लिमिट बढ़ के मिलती है हमको थोड़ी। एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन सिंक्रोनस में, यू नो दैट एट मैक्स वी कैन एग्जीक्यूट 100 एसक्यूएल क्वेरी एक ट्रांजेक्शन में ना, तभी तो हमको एरर मिलता है, अगर इफ यू आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट मोर देन 100 एसक्यूएल क्वेरी, तो हमको एक एरर मिलता है वहाँ। क्या एरर मिलता है बाय द वे? यस, कैन एनी वन ऑफ यू इफ यू आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट मोर देन 100 एसक्यूएल क्वेरीज, व्हाट इज द एरर? क्या एरर मिलता है हमको? हम्म? क्या एरर मिलता है इफ यू आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट मोर देन 100 एसक्यूएल क्वेरीज पर ट्रांजेक्शन? एक ट्रांजेक्शन एक प्रोग्राम में 100 से ज्यादा एसक्यूएल क्वेरी अगर आप फायर करते हो, क्या एरर मिलता है आपको? यस, एनी वन ऑफ यू? हम्म? अरे सिस्टम डॉट लिमिट एक्सेप्शन टू मेनी एसक्यूएल क्वेरीज वन नॉट वन, दो ही तो एरर कोड पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, आप दो ही याद नहीं कर रहे हो यार, ऐसे तो एरर कोड बहुत सारे हैं। एक 101 बोला है, 101 और 151, दो ही तो एरर कोड पता है आप लोग को। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। हाँ, बट व्हेन इन दिस योर असिंक्रोनस ऑपरेशन में आपकी गवर्नर लिमिट बढ़ जाती है, इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन यू कुड फायर 200 एसक्यूएल क्वेरीज। नॉर्मल हीप साइज सिंक्रोनस में 6 MB होता है, 60 लाख कैरेक्टर्स जो आपने है, बट यहाँ पे इट्स लाइक 12 MB है, आपका हीप साइज भी बढ़ जाता है, हीप साइज भी आपको बढ़ के मिलता है। तो कुछ गवर्नर लिमिट्स है जो आपको बढ़ के मिलती है, बस दो है। एक तो नंबर ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज 100 से 200 हो जाती है, हीप साइज 6 MB से 12 MB हो जाता है। ठीक है, दैट मीन मोर अमाउंट ऑफ डेटा इवन वी कैन स्टोर, ऐसा होता है ये। और बाकी तो फिर बैच प्रोग्रामिंग में समझाऊंगा, बाकी ठीक है, बैच प्रोग्रामिंग तो कहाँ यूज करते हैं हम लोग, तो भी जनरली ये लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस, कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस, या फिर इंटीग्रेशन जब हम परफॉर्म करते हैं, व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग, वी आर आस्किंग एंड some parameters from any of the third party system, that time actually we make the use of asynchronous programming. Now what are the topics that I'll be covering inside this, I'll be covering like things, सबसे पहले मैं बैच प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं स्केड्यूलेबल अपेक्स जिसको स्केड्यूल प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, और फ्लेक्स क्यूज पढ़ाऊंगा, अभी अभी मैंने नाम लिया था उसका। उसके बाद मैं फ्यूचर मेथड्स में आऊंगा, क्यूएबल अपेक्स या फिर क्यूएबल इंटरफेसेस पे आऊंगा, और उसके बाद खत्म। तो दीज आर द 5 टॉपिक्स दैट विल बी कवरिंग इनसाइड द asynchronous programming. Out of that, the most important topic is bash programming. The most important topic for in terms of your interview, even after in the real time as well, most important is bash programming. Bash programming फ्यूचर मेथड तो नहीं होता, लेकिन क्यूएबल, दीज आर द टू कॉमन चीजें जो प्रोग्रामिंग इंटीग्रेशन में भी मेक अ यूज ऑफ दैट। एक होता है बैच प्रोग्रामिंग, दूसरा क्यूएबल इंटरफेसेस ज्यादातर यूज होती है। फ्लेक्स क्यू इज एक्चुअली नॉट अ प्रोग्रामिंग, इज जस्ट अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, बट यू मस्ट नो दैट, तो उसके लिए फ्लेक्स क्यू बताना जरूरी होता है। अदरवाइज देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन फॉर दैट। इम्प्लीमेंटेशन इसका रहेगा फ्यूचर मेथड का रहेगा, क्यूएबल करेगा। इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहेगा फ्लेक्स क्यू का, दैट इज जस्ट थियोरटिकल टॉपिक। ठीक है, let me now give you an overview of the batch programming. I'm going to start it probably by tomorrow, but let me give you the overview. Batch program. Okay, when I go with this user interface, if I open, for example, contact object, if I press this new button, with this user interface, I could enter one record. I enter the details. I enter the details, and I press this save button. So I was able to, I was able to create one record. So with the user interface, you can insert, update, delete one record at a time. That's what the capacity of user interface. Now, when I wanted to go beyond this, when I wanted to I mean this discussion we already have taken, data loaders में बता चुका हूँ मैं, फिर भी आज repeat कर रहा हूँ।
So with a conventional user interface, you are able to enter one record. That means you are able to process one record, not enter, you are able to process. Process means insert, update, delete, whatever. You can process one record at a time. Then you have something called as data import wizard. Data import wizard. You have something called as data import wizard. So the capacity of data import wizard is somewhere around 50,000, 50K. With the data import wizard, you can perform that insert, update, whatever on the 50K record. We also have learned something called as data loaders. Data loader is, it's having more capacity. 5 million, that means 50 lakh. 5 million record you can process with the data loaders. 5 million records you can process with the data loader. But if, this is actually a very big capacity, but still, if I go with the batch programming, you know how much data I could process? I could process up to 50 millions of the record. 5 crore record you can process in a single transaction. इतनी बड़ी कैपेसिटी होती है बैच प्रोग्रामिंग. 50 million records, 5 crore record, you can process it in a single transaction with one program. You can process up to this in one SQL query with one DML statement. You can process up to 50 millions of the record. तो बैच प्रोग्रामिंग अब अगर तुमसे मैं इंटरव्यू में पूछूं बैच प्रोग्रामिंग का यूज क्या है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द यूज ऑफ बैच प्रोग्रामिंग, तो बैच प्रोग्रामिंग का सबसे बेसिक यूज बताऊं मैं आपको, कहाँ पे हमको बैच प्रोग्रामिंग लिखना पड़ता है. डेटा माइग्रेशंस. ये एकदम रियल टाइम एप्लीकेशन है बैच प्रोग्रामिंग का, डेटा माइग्रेशन. whenever there is a need to migrate a huge amount of data, enormous capacity of data, whenever there is a need that we wanted lakhs of data, millions of data to be get migrated, to be get processed, that time actually what we use something called as batch programming. तो बैच प्रोग्रामिंग का जो यूज है ना वो सबसे ज्यादा जो है वो डेटा माइग्रेशंस में होता है. और ये मैं बिल्कुल रियल टाइम बता रहा हूँ आपको. मैं 2 प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूँ इसके ऊपर, जहाँ पे हमने डेटा जो है माइग्रेट करके मंगवाया है सेल्सफोर्स के अंदर, और या फिर सेल्सफोर्स को ऐसा टूल बना के माइग्रेट किया है. 2 अलग अलग प्रोजेक्ट में काम किया है मैंने. दोनों में आई वाज रिटन द बैच क्लासेस फॉर दैट. अभी रिसेंटली मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन आगे होने वाला है. एयर टेबल से डेटा AWS के पास आ रहा है, और AWS से फिर मैं माइग्रेट करके उसको, दैट टाइम आई विल बी राइटिंग द बैच प्रोग्राम, तब मैं लिखूंगा बैच क्लासेस. अभी लिखा नहीं है लेकिन फ्लो पता है मुझको. फ्लो पता है. फ्लो ये है कि एयर टेबल से डेटा आएगा AWS में, और AWS से फिर माइग्रेट करके मैं उसको सेल्सफोर्स में लेके आऊंगा. बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है. 10 साल का डेटा है, पिछले 10 साल का. काफी सारी वैल्यूज. एंड क्लाइंट सर्टेनली डोंट वांटेड टू लूज दैट डेटा. डेटा ही तो सब कुछ होता है. फॉर एवरी बिजनेस डेटा इज वेरी एसेंशियल. अगर डेटा लॉस, बिजनेस खत्म. तो व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग दैट सॉल्यूशन टू द क्लाइंट, हम एक नया सॉल्यूशन दे रहे हैं क्लाइंट को. क्लाइंट वाज यूजिंग एयर टेबल इन आउटडेटेड काइंड ऑफ सीआरएम. सीआरएम भी नहीं है वो, आउटडेटेड है. नाउ वी आर प्रपोजिंग देम सेल्सफोर्स सीआरएम, बट वो उसका सबसे बड़ा कंसर्न, व्हाट अबाउट माय एग्जिस्टिंग डेटा. तो वी आर परफॉर्मिंग. तो ये सारा डेवलपमेंट के बाद में एक फेज है, सबसे आखिरी का फेज है डेटा माइग्रेशन, जहां हमें बहुत ध्यान रखना है इस चीज का कि क्लाइंट का एक एक डेटा, एक एक रिकॉर्ड माइग्रेट हो जाए सही तरह से. ये मैं दूसरी बार कर रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने एक बार किया है. तो बैच प्रोग्रामिंग का जो सबसे कहना चाहिए कि जो एक्चुअल यूज है वो डेटा माइग्रेशन पे यूज होता है बॉस. क्यों? क्योंकि अरे कैपेसिटी बड़ी जबरदस्त है इसकी. 50 मिलियन रिकॉर्ड मजाक नहीं होता. 5 करोड़, मतलब सोचो ना, अगर मेरे को 50 करोड़ का भी डेटा अगर माइग्रेट करना है तो बस 5 साइकिल्स लगेंगे मेरे को, 5 साइकिल है ना. 50 मल्टीप्लाइड बाई 10, 50 जो भी होगा, मतलब शायद मैथमेटिक्स गलत है मेरा, लेकिन मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा भी मेरे को माइग्रेट करना है तो टेंशन नहीं है. मतलब मैं एक्चुअली 5 साइकिल 10 साइकिल जो भी लगती है बैच प्रोग्रामिंग की वो मैं एग्जीक्यूट करूंगा. हाँ अच्छा सौरभ सौरभ पूछ रहे हैं कि माइग्रेशन. सौरभ, माइग्रेशन का मतलब होता है एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में लाना. चलो अभी आप सवाल पूछें तो मैं कुछ दिखाना चाहूंगा.
ये एक्चुअली सैंडबॉक्स है, इसमें तो ज़्यादा डेटा नहीं है, बट ऐसा कुछ एनवायरनमेंट है जो हमारे क्लाइंट यूज़ करते हैं। अभी एयरटेबल ये एक टेक्नोलॉजी है, एयरटेबल जो है ये भी एक टेक्नोलॉजी है, ईआरपी का टेक्नोलॉजी है। और क्लाइंट का डेटा आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सारा डेटा है क्लाइंट का। ये कुछ सैंपल रिकॉर्ड है, ऑफ कोर्स ये सारे सैंपल रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि ये सैंडबॉक्स है, यहाँ लिखा है ना सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स मतलब टेम्पररी एनवायरनमेंट। बट जो उनका एक्चुअल प्रोडक्शन है उसमें काफी सारा डेटा मौजूद है। अब जैसे सर्विस प्रोवाइडर यूनिट या इनकी जो भी एंटिटीज हैं, ये सारा उनका डेटा है, ये सारा उनका डेटा है यहाँ, और काफी सारा डेटा है उनका। इसको वो लूज नहीं, इसको वो खोना नहीं चाहते। तो जब हम अब वो एयर टेबल से बोर हो चुके हैं, उनको एयर टेबल अच्छा नहीं लग रहा है, उनको सेल्स फोर्स में आना है। सेल्स फोर्स में आने के लिए हम डायरेक्ट एयर टेबल से यहाँ इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही आउटडेटेड है। एयर टेबल्स पे ना एपीआई नहीं चल रही है। तो इसका बीच का हल ये निकाला गया कि एयर टेबल किसके साथ कंपैटिबल है, तो पता चला कि एयर टेबल एडब्ल्यूएस के साथ में कंपैटिबल है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो पहला रन ये होगा कि एयर टेबल से सारा डेटा एडब्ल्यूएस में पहुंचेगा। और एडब्ल्यूएस जो है ये बहुत ही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, एडब्ल्यूएस जो है वो नया है। तो वी कैन बिल्ड, हम लोग यहाँ पे एपीआई लिखेंगे और एपीआई के थ्रू बैच प्रोग्रामिंग लिखूंगा मैं, और बैच प्रोग्रामिंग से मैं एडब्ल्यूएस से उठा के, मतलब इफ दिस इज द डेटा, यहाँ से एडब्ल्यूएस पे डालेंगे, जो एडब्ल्यूएस की टीम करेगी, और फिर एडब्ल्यूएस से उठा के उसको सेल्स फोर्स में लाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज माइग्रेशन, इसको माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेट करना मतलब एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में लेके जाना, ठीक है, इसका मतलब होता है माइग्रेशन। तो बैच प्रोग्रामिंग जो बेसिकली यूज होता है ना, उसका सबसे बड़ा पर्पस है माइग्रेशन, डेटा माइग्रेशन। जब भी आपको बहुत सारा रिकॉर्ड इधर से उधर सरकाना है, तब आप बैच प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ये याद रखना। बाकी सब कॉमन चीजें हैं। ठीक है, ठीक। थोड़ी बहुत और मैं इसको इंट्रोडक्टरी जो इसमें डिस्कशन है वो कवर करता हूँ, ताकि हम कल पहली बैच लिख पाए। क्या? चलो, बैच प्रोग्राम जो होता है, बैच प्रोग्राम लिखने का तरीका कैसा होता है। एक क्लास, जब एक क्लास है उसको जब आप बैच क्लास बनाते हो, तो इसमें कुछ चीजें ऐसी कि सबसे पहली बात, जो आपकी क्लास है, क्लास में तीन मेथड्स होती हैं, स्टार्ट, एग्जीक्यूट एंड फिनिश। हर बैच क्लास में तीन मेथड्स होती हैं, स्टार्ट मेथड, एग्जीक्यूट मेथड और फिनिश मेथड। अच्छा, जो भी क्लास आप बना रहे हो, ठीक है, दैट क्लास मस्ट बी ए ग्लोबल क्लास, क्योंकि ये सारी चीजें, ये दिस ऑल एवरीथिंग, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें, दैट मस्ट बी अ ग्लोबल, ये जो आप क्लास लिख रहे हो वो ग्लोबली एक्सेस होने वाली है। तो बैच क्लास भी ग्लोबल होना चाहिए। और बैच क्लास के अंदर जो आपकी तीनों मेथड है, जैसे आपकी मेथड है स्टार्ट, आपकी मेथड है एग्जीक्यूट, आपकी मेथड है फिनिश, ये तीनों मेथड भी ग्लोबल होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाकी एक्चुअली जो है ना, मैं पूरा कॉल कवर करके देने वाला हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, कि सबसे पहली बात, बैच क्लास जो है, इसमें तीन मेथड्स होती हैं, स्टार्ट मेथड, एग्जीक्यूट मेथड और फिनिश मेथड, ठीक है। बैच क्लास खुद एक ग्लोबल क्लास है और हमेशा ग्लोबल ही होती है। बैच क्लास हमेशा क्या होती है, ग्लोबल। साथ ही साथ जैसे आप लिखते हैं ना, पब्लिक, प्राइवेट, प्राइवेट तो टेस्ट क्लास में लिखोगे, प्रोटेक्टेड क्लास नहीं हो सकती, प्रोटेक्टेड मेंबर हो सकते हैं, ग्लोबल। तो अब आ रहा है ग्लोबल लिखने का समय। तो जो बैच क्लास हम बनाएंगे ना, बैच क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर जो है, स्कोप जिसको बोलते हैं, दैट इज ऑलवेज ग्लोबल। उसके बाद उसके अंदर जो मेथड्स हैं, जैसे देयर थ्री मेथड, स्टार्ट मेथड, एग्जीक्यूट मेथड, फिनिश मेथड, दे मस्ट ऑलवेज बी ग्लोबल। इनका भी एक्सेस स्पेसिफायर, इनका भी स्कोप क्या होना चाहिए, ग्लोबल होना चाहिए। ये पहली चीज है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ, ये जो फॉर्मेट है ना, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट, ये इंटरव्यू में लिखना पड़ता है, तो ये इंटरव्यू में लिखना पड़ता है। दे विल आस्क यू टू राइट दिस, दे विल आस्क यू टू ओपन, दे विल आस्क यू टू ओपन अ नोटपैड, जैसा अभी आपके सामने है, ठीक है, एंड दे विल आस्क यू टू राइट डाउन द फॉर्मेट ऑफ बैच क्लास। दे विल आस्क यू टू राइट डाउन द फॉर्मेट ऑफ बैच क्लास, दैट इज व्हाट यू रिक्वायर टू राइट इट डाउन, बिल्कुल ऐसा ही लिखने का है। कल उस पर अच्छे से चर्चा होगी, लेकिन थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन लो आप, ताकि एकदम ब्लैंक ना बैठो। तो बैच क्लासेस आर ऑलवेज ग्लोबल। उसके अंदर की तीनों मेथड, स्टार्ट, एग्जीक्यूट, फिनिश, दे आर ऑल्सो ग्लोबल, दे आर ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद में आएगा क्लास, क्लास नेम जो भी है। हाँ, नाउ टू मेक दिस क्लास एज अ बैच क्लास, नाउ टू मेक दिस क्लास एज अ बैच क्लास, हमको एक इंटरफेस इसके साथ जोड़ना पड़ता है। दीज आर समथिंग कॉल्ड एज डेकोरेटर्स, इसको हम डेकोरेटर्स बोलते हैं। देखो, ये जो डेकोरेटर्स वर्ड है ना, जैसे आप एक आर्मी ऑफिसर है, मान के चलिए, आई जस्ट गिव यू दिस एग्जांपल।
अभी वो आर्मी ऑफिसर ने पूरी जिंदगी देश की सेवा करी, उसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, बहुत अलग अलग मुकाम पे उसको बहुत सारे मेडल रिसीव हुए। तो वो जब अपना यूनिफॉर्म पहनता है तो उसके सारे मेडल ऐसे चमकते धमकते बिल्कुल उसकी छाती पे लटके हुए होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि इज अ हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर, इज अ हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर। देखो इसके कंधे पे कितने सारे मेडल्स और कितनी सारी चीजें, इसको अवार्ड मिला हुआ है। तो ये वर्ड वहीं से आया हुआ है, हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर। तो डेकोरेटेड मतलब क्या होता है कि वेन एवर एक क्लास जो कि बड़ी सीधी सादी क्लास हुआ करती थी, इट वॉज जस्ट अ जनरल क्लास, एंड वेन एवर यू आस्क टू, उसके साथ कुछ जोड़ दिया आपने जिससे उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है, उसकी इज्जत बढ़ जाती है, उसको देखने का नजरिया बढ़ जाता है, अलग हो जाता है। तो व्हाट इज द कीवर्ड फॉर दैट? इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स इज वन ऑफ द कीवर्ड फॉर दैट। इम्प्लीमेंट्स इज वन ऑफ द कीवर्ड फॉर दैट। अपेक्स में वेन एवर यू आर, आप अपनी क्लास के साथ में जब भी कुछ नया जोड़ना चाहते हो, आप अपनी क्लास को डेकोरेट करना चाहते हो, आप अपनी क्लास के साथ कुछ फंक्शनैलिटीज को ऐड करना चाहते हो, तो देयर इज अ कीवर्ड फॉर दैट, इम्प्लीमेंट्स। तो इम्प्लीमेंट्स क्या लाता है? खींच के लेके आता है, जोड़ता है उसको। इट्स अ टाइप ऑफ कपलिंग, जो जोड़ता है आपकी क्लास को एक अलग फंक्शनैलिटी के साथ। इट्स एक्ट एज अ कपलिंग। जो कपलिंग होती है ना, जो दो रेल के डब्बों को आपस में जोड़ता है, एक हुक जैसा होता है, वो कपलिंग। दैट इज व्हाट इम्प्लीमेंट्स एक्चुअली डू। तो इम्प्लीमेंट एक कीवर्ड, स्टैंडर्ड कीवर्ड है, और जिसका काम होता है आपकी क्लास के अंदर कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज को जोड़ देना, हुक कर देना। So if you wanted to make this class as a global class, as a batch class, you require to implement, you require to ask for one of the interface called as database.batchable interface. Database.batchable interface. Whenever you wanted to make a class as a batch class, that class must implement database.batchable. अगर आप ये implement नहीं करोगे तो this would become a general class, एक सीधी सादी common man वाली class बन जाएगी ये, and there will be no additional functionalities. बैच क्लास का कुछ भी उसमें functionality मौजूद नहीं है. So if I wanted to make this class as a batch, I certainly require to implement one of the interface called as batchable interface. Database class जो हमने अभी अभी ली है, अभी अभी पढ़ी है, उसी का इंटरफेस है. मैंने आपको बताया था सिस्टम क्लास और डेटाबेस, दीज आर द टू मोस्ट ब्रॉड क्लास, जो सबसे बड़ी क्लासेस है. तो to make a class as a batch class, it must implement database.batchable. database.batchable. और जब आप LWC पढ़ोगे तो एक्सटेंड नाम का कीवर्ड है, और में लाइटनिंग में एक्सटेंड, इम्प्लीमेंट्स पर इम्प्लीमेंट के बजाय एक्सटेंड नाम का वर्ड आता है. बट समझ जाते हैं एक मरतबा जब आपने एक कोई भी एक प्रोग्रामिंग लाइफ में अच्छे से सीख लो, उसके बाद में सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाती, ऐसा है. तो दिस इज जस्ट अ कीवर्ड which decorates this class and make this class to become a batch class. So for making of that, we require to ask for one of the interface, database.batchable interface, along with the S object as a parameter, and you require to write it in the same format, everything. Now let's come to the methods. Your methods, there are three methods. Always there are three methods. Even though if you miss one of the method, it will going to throw you the error in that case, right? So your batch class must have the three methods. Your batch class must have the three methods. What are those? Start, execute, and finish. Start, execute, and finish. Okay. Now all these three methods, start method, execute method, and the finish method, they actually communicate with each other. You know, these three methods actually communicate with each other. What is that communication medium between them? Is always database or batchable context. This is also one of the class. This is also one of the class, database or batchable context. You see, in the start method, database or batchable context. In the execute method, database or batchable context. In the finish method, database or batchable context. So every time, by tomorrow I'll be discussing this with one of the diagram. I have one diagram that I require to show you. But right now, I just wanted you to understand this format. By tomorrow, we will be, I'll be before taking the program, I'll be explaining the same thing with one on the diagram. I'm having the diagram. So all these three methods, start, execute, and finish, they are having one of the intercommunication between them. Telephone है दोनों के पास, सबके पास एक ही नंबर है, कौन सा? database.batchable context. Every one of them dial the same thing, database.batchable context. Start, execute, database.batchable context, database.batchable context. What is this B context? Everything को कल देखेंगे. So all of the methods, these three methods have a communication channel in between, and that communication channel is one of the method called as database.batchable context method.
So one of the parameter inside this will always be in the start method. This is one of the parameter. In the execute method, there are two parameters. List of s object as well. कल देखते हैं. टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ेंगे. Database dot batchable context. Finish में भी database dot batchable context. Okay. Now third thing, return type. Return type. Return type. Execute return type is void. Finish return type is void. But start method returns something. Start method returns something called a database dot query locator. डोंट वरी, अगर ये सर के ऊपर से पूरा भी बाउंस हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं लेना. कल एक डायग्राम निकाल के पूरा समझा दूंगा. बट उसका मतलब ये नहीं कि अभी टीवी देखना शुरू कर दो इसको म्यूट करके. नहीं, देखो समझो सुनो. अगर आपने अभी 2% 3% 10% भी सीख लिया ना, बहुत खींच लिया. मेरे को जब पहली बार पढ़ाए थे पूरा बाउंस हो गया था. तो अगर आप मेरे को बाउंस हुआ तो आपको बाउंस हुआ, मतलब आप और मैं एक ही कैटेगरी के लोग हैं और हम बाद में तूफान मचाने वाले हैं. ठीक है, डोंट वरी, कुछ नहीं. फिनिश मेथड का रिटर्न टाइप और एग्जीक्यूट मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है. मतलब ये दोनों ना आपके, ये दोनों प्रोसीजर है. प्रोसीजर का रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड होता है. स्टार्ट जो है ना वो फंक्शन है, इसका अपना एक रिटर्न टाइप है. इट रिटर्न समथिंग. क्या रिटर्न करता है कल देखेंगे. डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर रिटर्न करता है. अरे ये क्या नई चीज है, और ठीक है ना, कल देखेंगे. कल देखेंगे ना, टेंशन नहीं लेने का. ठीक है. तो तीन मेथड्स होती हैं, स्टार्ट एग्जीक्यूट एंड फिनिश. तीन मेथड्स होती हैं और ये थोड़ा सा फॉर्मेट है. ये फॉर्मेट थोड़ा सा आपको याद रहना चाहिए. और ये पूछते हैं एग्जाम में, एग्जाम बोल रहा है आपके इंटरव्यू में, कि आप बैच क्लास का फॉर्मेट लिखें. बैच क्लास का फॉर्मेट लिखना है तो इस तरह से लिखा जाता है. ठीक है, और बाद में फिर देखें कैसे इन्वोक करना, वो सब सब बात की चीज है. तो कल ये प्रोग्राम लूंगा, बट उसके पहले एक डायग्राम लूंगा, वो कंसेप्ट समझाऊंगा. उसके बाद फिर हम लोग बैच प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलो. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस सो फार? Any questions? I'll going to share this every diagram by today itself. I'll be sharing everything onto your drive. Don't worry. Drive पूरा update कर दूंगा मैं आज. Yes. Any questions? Any questions? Yes, guys. Any questions? Any questions? Nothing. Nothing. Okay, fine. Let me stop the sharing.